log kya kahenge. She has to, because she has to make money for the family. You know what I'm saying? So ऐसी छोटी छोटी बहुत सारे क्या कहते हैं उसको instances हैं where like I'm sure there's a lot of families that have to then let go of this log kya kahenge narrative to then progress in their family and their relationships. एक्सीलेंट एक्सीलेंट। अब ये बताएं कि जो लोग क्या कहेंगे, एक तरफ तो ये है, ये लड़कों के लिए कम है, लड़कियों के लिए जरा ज्यादा नहीं है? क्यों? और आज इस जनरेशन में भी ऐसा ही हो रहा है। I don't जो know. जेनजी जनरेशन है उसमें भी यही हो रहा है कि लोग क्या कहेंगे लड़कों के लिए ज्यादा है। फॉर एग्जाम्पल, लड़के निकल जाएं 11 बजे बाइक पे तो नॉर्मल होगा, लड़कियां अगर 11 बजे 2-3 निकल जाएं तो लोग क्या कहेंगे। इसमें सिक्योरिटी इश्यूज तो नहीं है, या वाकई में I think लड़कियां to a बेवकूफ certain होती हैं? degree- ये सही है? I think to a certain degree security issues hain. I would also actually agree कि like अच्छा, लड़कों के लिए नहीं सिक्योरिटी इश्यूज? I don't care about men. Sorry. हस्बैंड बैठे हैं? I only care about that man. I एक्सीलेंट, don't फिर care ठीक about है, any फिर man. ठीक है, ठीक है। No, मतलब but शायद किसी की भी नहीं। no, yeah, no, not at all. But no, I think that security issues definitely हो सकते हैं दोनों के लिए, for sure. But I feel like that women, if you're not gonna change your men, then teach your women how to defend themselves, and trust your women to know how to defend themselves. Does that make sense? I don't और know. अगर कोई गलती होती है फॉर एग्जांपल, तो इसका मतलब ये कि आपने ही शायद ट्रेनिंग ठीक नहीं की होगी, ऐसा कह सकते हैं? No, no, you can never say that. You can never say कि लड़की की गलती है in situations में. I wouldn't want to say that, because if something has happened and you're blaming the woman, that's so stupid. That's so dumb. You know, I'm not gonna sit here and explain why it's dumb, but it's just dumb to blame the woman for something happening to her. That's not her fault. अच्छा, ये वर्ड समझ में आ गया लोगों को, पाकिस्तानियों को, कंसेंट, मर्दों को? चलो लड़कियों को भी कह देते हैं, दोनों तरफ कह देते हैं। I don't even know, dude. Over here in Pakistan, the way our culture is and the way that I don't know. I can't. The thing is, I can't really say much about these situations just because पाकिस्तानी मर्दों को usually मैंने देखा नहीं है कि वो change करेंगे या grow करेंगे या therapy के लिए जाएंगे. चेंज करेंगे, ग्रो करेंगे, या तुम लोग थेरेपी जाओगे? I've not seen a lot of men go to therapy at all. Like, my husband's a therapist. Majority of his clients are women. There's only hardly 2-3 men maybe that he might be. ईगो में? I don't know. The thing is, थेरेपी तो जरूरत तुमको ज्यादा नहीं है वैसे लड़कों को? मुझे लड़कों को that's the thing, right? Men do need therapy. They need therapy actually way more than the women do. But the problem is that women are adaptable creatures. We love to adapt. Okay, we love to learn. We love to grow. We love to see what the world has for us. We love to know what more we can learn from the world, right? Men have this ego where they're like, no, if I'm right, then I'm right, and that's just how it is, you know. And it's I don't know. I think they're just reluctant to want to. अच्छा, ये कितने % मर्द ऐसे हैं वैसे? I don't know, girl. That's a question for my husband. You would know that. अच्छा, आपके हस्बैंड इस कैटेगरी में तो नहीं आते? रिलक्टेंट तो नहीं है? Reluctant to going to therapy? He is a therapist. अच्छा, थेरेपिस्ट। अरे वाह, एक्सीलेंट यार, घर पे ही आप लोग थेरेपी कर लें। अच्छा जी, यूजुअली देखा जाता है कि कहते हैं कि मर्दों के पीछे एक ख़वातीन का हाथ होता है, तो आपके जो हस्बैंड है आपको सपोर्ट करते हैं, आप काम कर रही होती हैं, कभी कभी मैंने देखा क्रिटिसाइज़ कर रहे होते हैं लोग, मैंने कमेंट्स देखे बहुत बहुत अजीब अजीब थे। तो आपने तो कह दिया मैं यूनिक हूँ अपने काम में, मतलब आप अलग से कोई काम कर सकती हैं जो भी कर रही हैं। तो इस पर जब ये सब कुछ आता है तो इसमें आप एक तो सपोर्ट की बात आई, दूसरी बात आप कैसे लेती हैं सिचुएशन को जब वो यूनिक को यूनिक नहीं कह रहे? वही है ना, बिकॉज आप यहाँ पर हैं तो यहाँ पे लोगों का मसला ये है कि आप थोड़ा सा भी अगर डिफरेंट हो और उनको नहीं समझ, पीपल आर अफ्रेड ऑफ समथिंग दे डोंट नो. People are mostly going to just not understand or hate on something they don't understand, right? ये वो वाली बात है कि आपको अंधेरे से डर लगता है. आपको अंधेरे से डर नहीं लगता, आपको अंधेरे के अंदर जो चीज़ है उससे डर लगता है. ये बात लोगों को समझ में नहीं आती है कि you're scared of the unknown, right? But no, my husband supported me throughout my journey right after, you know, we got married and everything. He's been the one person that literally like is constantly like after me to be like, काम कर लो, अच्छा इससे बात कर लेते हैं. He's okay, so basically he manages me and he produces a lot of my music. So we're constantly in hand when we're making art and when we're making these sort of decisions कि अच्छा इनके साथ काम करना है, किसके साथ काम करना है, या म्यूज़िक किस तरह का बनाना है and all that stuff. So I could not honestly ask for a better husband. भाई आप तो यहाँ आ जाएं यार,
आपको तो पॉडकास्ट में बहुत ज़रूरी था वैसे, आपको चाहिए था इनके साथ पॉडकास्ट में बिठाना चाहिए Right? था। I know. हाँ, मैंने भी रिसेंटली रोना और कोको को किया था, वो दोनों जो बहुत अच्छा उन्होंने कभी मुझे अच्छा लगता है ऐसे अगर Yeah. हस्बैंड वाइफ से सपोर्ट कर रहे हैं। यूजुअली Yeah. हम कहते हैं गाड़ी के 2 टायर ये बकवास यार चलती हुई आ रही बहुत अच्छे से, लेकिन कोई बिलीव नहीं करता। Yeah. तो अगर इस तरह बिलीव करें कि दोनों इसे सपोर्ट करें तो इससे अच्छी बात और क्या होगी? और आई थिंक आप पाकिस्तान में आपको खुश होना चाहिए जब आपको नज़र आते हैं कि एक कपल है जो एक दूसरे से इतना प्यार करता है कि वो एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहता है एंड ऑल दोस थिंग्स। यूजुअली मुझे जो रिएक्शंस आते हैं वो आंटियों के रिएक्शंस आते हैं कि आय हाय ये घर चला रही होगी एंड आई एम लाइक what if it's both of us, you know, what if he just lets me be who I want to अच्छा नहीं, be? अगर फॉर एग्जांपल आप घर चला रही होंगी, Yeah. इसमें क्या इशू है? घर चला रही है इन द सेंस कि लाइक ओ ये इसको बोलती होगी कि ये करे या वो नहीं तो करे। इसमें भी क्या इशू है? इसमें दैट्स द थिंग राइट, इसमें क्या इशू क्या है, है? बीवी है उसकी, मतलब कोई बाहर से थोड़ी लड़की कह रही है उसे कि तुम ये कर। Exactly. अगर बाहर से भी कह रही होती तब भी कोई बुरी बात नहीं you थी, know क्या है इसको? exactly, and वही बात है कि आप you have to give your partner, whether you're a woman or a man, you have to give your partner that space to be themselves, कि मतलब वो आपके साथ खुलें, वो you know they're able to talk to you about their issues, they're able to communicate with you कि उनको क्या चाहिए आपसे और आपको क्या चाहिए उनसे। You should be able to have those conversations. बहुत सारे couples तो एक ही घर में होते हैं but like they're literally not talking to each other, you know what I तो mean? ये जो शुरू से कहते हैं कि हस्बैंड वाइफ दोस्त होने चाहिए, तो हाँ। हो जाते हैं वैसे, होते नहीं है ना शादी के बाद नहीं, के। ये लड़कियां बहुत लड़के सच कहते हैं होना हम दोस्त रहेंगे, फिर दोस्त नहीं रहते शादी के बाद, कुछ और हो जाते हैं। क्योंकि I feel like शादी के बाद a lot of the times I've noticed people change. Some people at least like change, you know, कि because they're like okay well now we're married so I guess this is it. So फिर वो romance and the you know क्या कहेंगे उसको, the chemistry and the trying to understand each other वो सिर्फ शादी से पहले होता है और फिर वो शादी के बाद they're like अब तो हाँ अब तो है मेरे पास चलो whatever. So I don't know. There should always be something that is constantly keeping you guys, you know, in the relationship. You know, something that you two both like really care about, and you should care about each other. मतलब ये तो एक given है। आप relationship में क्यों हो अगर आप एक दूसरे को if you don't care about each other, you know, if you don't love each other, why are you in a relationship then? हाँ, अगर आप प्राउड फील नहीं कर रहे दूसरे के ऊपर और आप Yeah. इतनी फ्रीडम नहीं है कि आप अपनी कोई बात शेयर कर सकें, Yeah. तो बिजनेस डील में होंगे मेरा So ख्याल में। exactly right. Then you're just actually friends, which is like not doing anything. अच्छा जी, बोल्ड, इस वर्ड कैसे डिफाइन करेंगे? ये जो इतना ज्यादा बोल्ड 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 एंड ब्यूटीफुल, बोल्ड एंड ब्यूटीफुल, बोल्ड Beautiful नहीं बोलते, bold बोलते हैं। मैंने वैसे ही डाल दिया था मैंने, चलिए। Thank you, thank you. I hate that word so much. I hate it so much. यार इस वर्ड में क्या बुराई है वैसे, इसको अगर अच्छे से इस डिफाइन word करते हैं, चलें आज आप थोड़ा इस सा अच्छा कर word लेते में हैं नहीं है, इसको, आज अच्छा बिल्कुल करते हैं बुराई इसको। है। Let's do it. Yeah, चलो। I'm down. There's no बुराई in bold, but the problem is कि जिस तरीके से यहाँ पे use हो रहा है ना, it's at this point it's rude. It's just mean. You're calling me bold just because I wear whatever I want? How is that bold? Wait, so you're telling me कि अच्छा मैं जो भी करूँ अपने साथ, अपने कपड़ों के साथ, अपने बालों के साथ, अपने मेकअप के साथ, वो बोल्ड है बस क्योंकि मैं कर रही हूँ और आपने पहले नहीं देखा हुआ तो आपको लगता है कि वो बोल्ड है? ये कैसी बात नहीं, है? देखा तो होता है उन्होंने नेटफ्लिक्स के ऊपर, That's what इंडियन I'm मूवीज saying. में If देखते you've हैं। seen it, why are you calling me bold? You know what I mean? So it's like it's not about being bold. It's about like just accepting people for how अच्छा, they ऐसा तो are. नहीं होता उनको अपने, ऐसा लगता है शायद कल्चर एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, ऐसा तो नहीं होता उनके लिए जहन में Maybe. I don't know. कि हमारा कल्चर है, नॉर्म्स हैं, वैल्यूज हैं, उनको ऐसा लग फील आता हो? I don't know because like बहुत सारी अरबी औरतें भी ऐसी ड्रेस करती हैं और ऐसे ही बाल रखती हैं और ऐसे ही मेकअप करती हैं, so why am I any different in that sense? You know what I mean? मतलब बहुत there's a lot of type of human beings in the world. इसको क्राइम तो नहीं कहेंगे ना? No, why would it अनएथिकल be? भी नहीं कहेंगे? No. और अगर उसकी नजर में अनएथिकल हो तो क्राइम नहीं हुआ। No, but फिर वो आपका ओपिनियन हो जाता है। अगर आपको लगता है कि मैं बोल्ड हूँ, वो आपका ओपिनियन है। और लिबर्टी टू पहनना होना चाहिए जो दिल चाहे। हाँ, क्यों नहीं होना चाहिए? मुझे लगता है कि सब everyone should have the right to wear whatever they want. हाँ, skimpy ना पहने कुछ। If that's not your style, don't wear that. Don't be too revealing. I understand that as well, but I don't think that you should be. मुझे नहीं लगता कि आपको किसी को जज करना चाहिए बेस्ड ऑफ वो क्या कपड़े पहनते हैं। आपको नहीं पता कि वो इंसान किस तरह का इंसान है अंदर से, आपने उनकी कोई बात नहीं सुनी हुई। फॉर एग्जांपल, मैं बहुत सारे पॉडकास्ट पे जाती हूँ, मैं बहुत सारी बातें करती हूँ। सबसे ज़्यादा इशू लोगों को होता है अंग्रेज़ी क्यों बोल रही है। आपको खुश होना चाहिए, वो कह रहा है समझ में नहीं आती। आपको खुश होना चाहिए कि आपके कंट्री में ऐसे लोग हैं जो इंग्लिश बोलते हैं साफ, जो इंग्लिश बोलते हैं साफ, जो एजुकेटेड हैं, जो आपकी कंट्री को थोड़ा सा आगे लेके जाना चाहते हैं, थोड़ा